ஒய் த வேர்ல்ட் சடன்லி ஹேட்ஸ் இந்தியன்ஸ். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? எதனால நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் இந்த இமிகிரேஷன்ஸ் லாஸ்ட்டாக ஒரு 2 வீக்ஸ் நீ என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஃபீடு ஃபுல்லாகவே அந்த யூரோப் கண்ட்ரீஸில் வந்து இந்த இமிகிரேஷன் ஆகி வந்த எல்லாருமே டிபோர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபுல்லாக ப்ரோட்டஸ்ட் எல்லா கண்ட்ரிலையுமே. என்னோடய ஃபோர் பேஜ் ஃபுல்லாகவே தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ப்ளஸ் வந்து இந்த வீடியோஸ் நம்ம இங்கே உள்ள சில இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, சோஷியல் மீடியா வீடியோஸ் எடுத்து போடுறாங்கல்ல, அவங்களுக்கு தெரியும் இந்தியா வந்து சில இந்த ஃபுட் வந்து டர்ட்டியாக இருக்கிற இன்னும் பார்க்குற நல்லா இல்லாமல் அசிங்கமாக இருக்கிற வீடியோஸ் எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா வியூஸ் வரும், நம்மளும் நல்லாவே தெரியும். ஸோ அந்த வீடியோஸ் எடுத்து போடுறாங்க, அந்த வீடியோஸ் நிறைய வியூஸ் வருது. வியூஸ் வந்தது என்ன ஆகுது, அதை வந்து ஃபாரினர்ஸ் பார்க்குறாங்க. பார்த்தது ஓஹோ இதுதான் இந்தியா போல இந்தியா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. மெயினாக இதான் நடக்குது. अरे वर्ल्ड में ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो अभी इंटरनेट पे इंडियंस के बारे में गंद ना बोल रही हो. यहाँ से भी गाली आती है. உண்மை ஆக்சுவலி இப்போ பிளாக் ஒயிட் அந்த ரேசிஸ்ட் எல்லாம் தாண்டி இப்போ இந்தியன்ஸ் வெர்சஸ் அதர் பீப்புள்ஸ் அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு. हम इनके सड़क पे पान थूक के आ गए तो गाली आती है. यहाँ हमने इनके दुकानों से सामान चुरा लिया. यहाँ हम इनके ट्रेन में भगड़ा करके आ गए तो गाली आती है. अब तो अफ्रीका से भी गाली आती है यार. कैसे वेंटा. இப்போ இந்தியா மட்டும் அவங்களுக்கு ட்ரெஸ், இந்தியா அழிச்சா அவனுக்கு ட்ரெஸ் அப்போ யார் பண்ணுவான்? இப்போ ஆக்சுவலி ட்ரெஸ் வந்து மெயினாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது இந்தியா கிடையாது, மெயினாக பண்ணுறது பாகிஸ்தான் ப்ளஸ் பங்களாதேஷ். அது போக வந்து யார் பண்ணுறா அப்படின்னா சைனீஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம. नहीं, वहाँ के पोलार वेयरों ने भी बोला कि नीचे विमल का पैकेट पड़ा मिल रहा है, तो वो भी அட்டா பாவீங்களா. वेयरों ने भी बोला कि பான் மசாலா பாக்கெட், இங்கேயே பான் மசாலா பாக்கெட் திருந்தவே மாட்டானுங்க போலியே. नीचे विमल का पैकेट पड़ा मिल रहा है, तो वो भी. भाई 2025 के विदेशी इंटरनेट पे हम इंडियंस की बहुत ही गंदी इमेज फैलाई जा रही है. एक ये हम सब स्कैमर हैं. இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கீங்களா? டு நாட் ரெடி மீட் இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க. சரியான வீடியோ. நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் கமெண்ட் செக்ஷன் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்தியன்ஸை கலாய்க்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ரேஸாகவே இதை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க, டு நாட் ரெடி மீட் அப்படி. और What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. India. कचरा कहाँ है भाई कचरा? This is how Indians throw trash. I asked him for a dustbin. சூப்பர். Ew, you smell so bad. और तीसरा कि हम सब அண்ட் அதே மாதிரி இந்தியன்ஸ் வந்து குளிக்க மாட்டாங்க, இந்தியன்ஸ் வந்து பாடி வாஷ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, இந்தியன்ஸ் வந்து டியோட்ரண்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, ஷாம்பு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதும் அவங்க நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஏஐ வீடியோ பார்த்துருந்தேன். அதாவது ஒரு அப்பா ஒரு பையன்கிட்ட பேசுகிறான், அப்பா நான் வந்து ஷவர்லேருந்து குளிச்சிட்டேன் அப்படின்னு. உங்கள் அப்பா வந்து அவனை நீ இனிமேல் எனக்கு பிள்ளையே கிடையாதுன்னு விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சி விட்றாரு ஒரு இந்தியன் அப்பா. அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கானுங்க ஏஐயில். அப்போ எந்த அளவு நம்மளை பற்றி யோசிச்சு வச்சுருக்கான்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்களேன். से बदबू आती है. Smells good, speaks like a human, doesn't try to scam you. Indians 146 के लाइक्स भी है इस पे. बोल रहे मैग्नस कार्लसन गुकेश से इसलिए हारा क्योंकि मैग्नस was distracted by the curry scent. Wish your parents sent you to school. Spelling सीखने से पहले racism सीख गया या अनपढ़? I had a boss, he was Indian. They smell like onions. हैं माचा पी के जिंदा रहने वालों को अनियन की स्मेल पता लग गई. They smell like onions. They smell like onions. How dare you? अनियन की स्मेल मच बेटर है यार. मजाक. Lots of showers. न्यू बॉलीवुड हॉरर फिल्म कि हम इंडियंस डर के भाग रहे शावर से. ये सब वायरल जा रहा है बाहर. कमेंट्स में अंग्रेजों ने पिक्चर का नाम तक रख दिया, अटैक ऑफ द हाइजीन पार्ट 2 रिटर्न அதான் சொல்லலை, லாஸ்ட் கொஞ்ச நாளாக இன்ஸ்டாகிராம் ஃபீடு ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தான் வந்துட்டு. ऑफ द सोप. इंडियन स्क्विड गेम. For your first game, you will have to shower and use soap. Whoever fails to wash themselves हमारे लिए will be eliminated. ये इतना डर क्यों रही है? अबे हम रोज नहाते हैं. All players have been eliminated. They didn't redeem the shower. इस चैनल पे ஆல் பீப்புள் எலிமினேட்டட்.
गाली क्यों नहीं दे सकते यार? जितनी बार तुम एक हफ्ते में नहाते हो ना, उससे ज्यादा बार हमारा पिछवाड़ा एक दिन में नहा लेता है। क्या क्या है ये भाई, ये क्या है ये? एक से एक घटिया मीम कि हम शावर नहीं करते। They treat soap like Superman treats kryptonite. Indian touches soap for the first time. अबे नहीं डर लगता हमें, नहीं लगता डर। इंडियंस तो बल्कि हर जगह नहा ही रहे होते हैं, कुएं में, तालाब में, नदी में, वाटरफॉल में, वाटर लॉगिंग में। அது மாதிரி அந்த நார்த் சைடில் ஒரு ரிவர் உண்டுல்ல, அது மாதிரி கங்கா யமுனாவா ஆக்சுவலி புரியுது, அது ஒரு கொஞ்சம் புனிதமான ஒரு இடம் தான், புரியுது. பட் அவ்வளவு அது பார்த்தாலே நமக்கு அது தண்ணி தண்ணி பக்கமே அது போதும். அது எப்படி அதில் முங்கி குளிக்கிறாங்க சுத்தமாக புரியல. ஓகே புரியுது, அது ஒரு ரிலீஜியஸான ஒரு ரிவர் புரியுது. பட் ஸ்டில் ரிலீஜியஸான ரிவர் அப்படின்னா நீங்கள் அதை கரெக்டாக பாதுகாத்து வைக்கணும்ல. அது பார்த்தாலே குடிக்கிற மாதிரி. நான் நேற்று தான் அந்த வீடியோ பார்த்தேன், அதுவும் ஒரு ஃபாரினர் தான் ரியாக்ட் பண்ணி போட்டிருப்பாப்புல. வாரணாசி எதுக்கு அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஓகே புனிதமான ரிவர் எல்லாம் புரியுது, ஓகே எதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணணும்? புனிதமான ரிவர்னா அதை பாதுகாத்து வைக்கணும்ல. इनफैक्ट रोड में कोई पाइप फट जाए तो उसके नीचे भी 4 बच्चे नहा ही रहे होते हैं। हमारे आइटम सॉन्ग में तक लड़कियां नहा रही होती है। अबे हमारे बचपन का आइकॉनिक गाना भी था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो ये शावर वाली अफवाह फैला कौन रहा है? इंडियन हॉरर मूवी। हम डीओ से डर के भाग। और डाल, दिख रहा है मेरे शक्ल पे डर? हाँ दिख रहा है डर। हम तो पैंट में ना ओडोनिल तक टांगते हैं। This is a robbery. I have deodorant. No, not the deodorant. Have mercy. इनको लगता है हमारी यहाँ मम्मियाँ बोलती है, सो जा बेटा वरना रात को डिओड्रेंट आ जाए। इस देश में बस कोई पूछे बिना भाई क्या चल रहा है तो रिप्लाई में आता है फॉग। इतने डीओ पगलूज हैं हम। गोइंग ऑन अ डेट विद इंडियन गर्ल। Oh my God. डिओड्रेंट का आर्मर पहन, शैम्पू की गन। हम रेडियो एक्टिव है क्या बे? गोइंग टू मीट अ फॉरेन गर्ल। अब लग रहा है तैयार हूँ। विश मी लक। इन्हें ना बस अपने स्मेल की आदत है। अगर वही हमसे भी कोलेस्ट्रॉल की, मैकडॉनल्ड्स की, ओबेसिटी की, मच्छी की स्मेल आती तो नॉर्मल लगता ही नहीं। इंडियन फूड। இதுவும் பார்த்தேன், இந்த வீடியோவும் பார்த்தேன். ஆக்சுவலி இது வந்து இது இந்தியனா யாருன்னு தெரில. இது நம்ம மேபி நம்ம அண்டை நாடான ஆட்கள் கூட இருக்கலாம், மேபி பங்களாதேஷ் அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். பட் ஒரு 2 ஃபாரினர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க இதை. அது மேபி வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்தியன்ஸை பற்றி நினைச்சு வச்சிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்களேன், எந்த அளவுக்கு. यार हम बटर चिकन हेवन, मसालों की जन्मभूमि से यहाँ तक कैसे आ गए? अब इनको कैसे समझाओ कि टेस्ट भी तो इसी से आता है। यहाँ इंडियन मास्टर शेफ के 10 सीजन आ गए, लेकिन ये एक बेहुदे अंकल बने पड़े अब पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फूड। अब इन्हीं को देख के इंडिया को जज कर रहे हैं। पूरे इंटरनेट पे हेट भरा पड़ा। पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फूड। अब इन्हीं को கிட்டத்தட்ட சைட் பை சைட் வச்சு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. देख के इंडिया को जज। பட் இதெல்லாம் நம்ம சவுத்தில் இதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம சவுத்தில் இதெல்லாம் சுத்தமாக கிடையாது. நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது கிடையாது. பட் இது எப்படி வாங்கி சாப்பிட்றாங்க? நான் இது கூட பரவாயில்ல. இன்னொருத்தரை பார்த்தேன், ப்ரெட் எடுக்கிறான், தண்ணி மாதிரி ஒன்று முக்குறான், இன்னொன்று எடுக்கிறான், இதை என்ன போடுறான், அள்ளி போடுறான், ஒழுகுது. அதெல்லாம் எப்படி சாப்பிட்றான்னு சுத்தமாக புரியல. அதுவும் சுற்றி நிற்காத டீசெண்டாக இன்வென்டராக நின்று சாப்பிட்றாங்க. சரி நம்ம மேபி ஊர் சைடில் கூட நின்று சாப்பிட்றாங்கன்னா ஓகே அவங்க வேறு வழி இல்லாமல் சாப்பிட்லாம் சொல்லலாம். ஐடி எம்ப்ளாயிஸ் மாதிரி இன்னெல்லாம் டீசெண்டாக இன் பண்ணிட்டு நிற்கிறானுங்க, அவங்கள தான் சாப்பிட்றாங்க. पूरे इंटरनेट पे हेट भरा पड़ा है। अब यही है क्या हमारी इमेज? ताज துபாய் முஸ்லீம் கண்ட்ரி தானே. முஸ்லீம் கண்ட்ரிலையுமே டாய்லெட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறாங்களா என்ன? முஸ்லீம் கண்ட்ரிலையுமே டாய்லெட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கஷ்டம் தான், மிக கஷ்டம். कहाँ गया? कल्चर, ट्रेडिशन, महात्मा गांधी, शाहरुख खान, योगा। अबे कुछ साल पहले तक तो फॉरेन लड़कियां डाबर आंवला तेल तक लगाने लग गई थी यार। साड़ी पहन के वीडियोस बना रही थी। व्यूज के लिए फॉरेनर्स भोजपुरी गानों तक पे रिएक्ट करने लग गए थे। எப்பா ரியாக்ட் பண்ணுறது இருக்குல்ல, ரியாக்ட் பண்ணுறது மெயினாக வந்து வியூஸ். அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபாரினர்ஸ் ரியாக்ட் டு இந்தியன் வீடியோஸ், இந்தியன் சாங் ஏதாச்சும் ஒரு இதை போட்டாலே அவங்களுக்கு தெரியும் அது வியூஸ் வரும் அப்படின்னு. அதனால அவங்க வந்து அந்த கல்ச்சரை பிடிச்சி பார்க்குறாங்க. மேபி சில பேர் மேபி பார்க்க கல்ச்சரை பிடிக்கலாம். மேபி சில பேர் பார்க்க வந்து அவங்களுக்கு
அதுக்கு மேலே ஓகே இந்தியானா இப்படி கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் மாறலாம். பட் நிறைய மெயினாக வந்து வியூஸ் வேண்டியது. सडनली क्या बदल गया? बदला ये हमारे देश के कुछ घिनौने वीडियोस इंटरनेशनली चले गए वायरल और हमारे कुछ लोग विदेश जाके हक के आ गए लिटरली और उन कुछ लोगों वायरल பண்றது நம்ம ஆட்கள் தானே. सेकंड टाइम पर इतना हेट हम थोड़ी डिजर्व करते हैं यार. ऐसा क्या ही किया है इन कुछ लोगों ने? बस ताकि फॉरेन की सड़क पे कचरा ना हो, सड़क के साइड में कचरा फेंक दिया अंदर तक ताकि किसी को दिखे ना. सो नाइस. புரியுதா? அந்த இமிக்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் வெளியே அனுப்பிச்சி விடுங்கன்னு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, மெயின் ரீசன் இவங்கள மாதிரிப்பட்ட ஆட்கள் தான். உங்கள் கண்ட்ரியில் உங்களால் போட முடியல, இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகிறீங்க, இன்னொரு வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி இன்னொரு வீட்டுக்கு போய் உங்கள் குப்பையை அவங்க வீட்டுக்கு எதுக்கு போடுறீங்க? டஸ்ட்பின் இருக்கும் இல்லை? நான் சிங்கப்பூர் போயிருந்தேன், ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாக டஸ்ட்பின் இருக்குது. டஸ்ட்பின் இருக்கிறத பார்க்கும்போதே நமக்கு டஸ்ட்பினில் போட தோணும். எங்கள் டஸ்ட்பின் கண்டிப்பாக இருக்கும், அதில் போட்டால் என்ன? நம்ம ஒரு விஷயத்தை பண்ணி பழகிட்டோம் அப்படின்னா சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் அப்படி பதிஞ்சிடும். அந்த மாதிரி அப்படியே தூக்கி போட்டுருவாங்க போல. of them. फिर फॉरेन में मना करते हैं ना बस से बाहर कचरा फेंकने, तो कचरा बस के अंदर ही फेंक दिया. दे मनुष्य लोग यार, सो नाइस ऑफ देम. ताकि फॉरेन की जमीन साफ रहे. हमारे लोग तो पैर तक ऊपर रखते हैं यार, फिर भी ये लोग हमें हेट करते हैं. नॉट फेयर. पैर हम जमीन को भी नहीं रख रहे पैर यार. रिस्पेक्ट द फ्लोर. इतना सॉफ्टली मैनर्स से प्यार से तो हम बात करते हैं. पोलाइटनेस, मैनर्स. और ताकि फॉरेन का पानी वेस्ट ना हो, हम वही प्लेट पे ही कोक डाल के हाथ मुंह धो लेते हैं यार. और भला क्या करेगा अच्छा इंसान. मिलियनेयर गाने पे 2 कौड़ी का काम. सो हम्बल. हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ के आते हैं. यहाँ लगा पासपोर्ट पे वीजा का थप्पा, उधर लगा पान का थप्पा. हमारी लैंग्वेज. ஆமாம், ஆக்சுவலாக இது பார்த்தேன். அது எப்படி சொல்கிறது, பாஸ்போர்ட் पे அந்த ரோட் சைடு வாக்கில் வந்து இதை ஒரு ட்ராஷ் கேன் வச்சுருப்பாங்க. ட்ராஷ் கேன் ஃபுல்லாக பான் மசாலா போட்டு எச்சு துப்பியிருப்பாங்க. ஃபுல்லாக செக்கச்செவன்னு இருக்கு. செக்கச்செவன்ற அந்த ட்ராஷ் கேன் செக்கச்செவன் அந்தளவுக்கு எச்சு துப்பிடு எனக்கு பான் மிளகு போட்டு. நான் என்ன நினச்சிட்டு தான் அப்படின்னா, அந்த யூகே எல்லாம் போகிறவங்க வந்து சரி டீசெண்டாக படித்து இன்னும் வெல் மேனஸாக எல்லாம் தெரிஞ்சு போகிறாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் அப்படி இல்லை போல. ஓகே, எவன்லாம் யூஎஸ் போகலாம், யூகே போகலாம் போல, படிக்காதவன் அறிவில்லாதவன் எவன்லாம் போகலாம் போல. वीजा का थप्पा, उधर लगा पान का थप्पा. हमारी लैंग्वेज फॉरेन पहुंच गई भाई. प्राउड मोमेंट. फाइन्स है, उन्हें पान इंस्पेक्टर्स रखने पड़े हैं. वी आर क्रिएटिंग जॉब भाई. 15-20 करोड़ तो यूके को इन फाइन से ही मिल जाने. वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल जीडीपी. बताओ यार, डू वी डिजर्व इतना हेट? ऐसा क्या किया हमने? अब इसको कैसे डिफेंड करेगा तू? भाई मेरे को सुसु आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मूतूंगा. ये बस துபாய் வந்து முடிச்சாச்சு, புரியுதா? துபாய் வந்து இப்போ துபாய் கிடையாது. துபாய்ங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு 90% மல்லூஸ், ஒரு 2% அரப்ஸ், ஒரு 3% ஃபிலிப்பைன்ஸ், பேலன்ஸ் தமிழ்ஸ், அந்த மாதிரி தான். துபாயில் 1% தான் அந்த துபாயில் வந்து டூரிஸ்ட் வராங்க, புரியுதா? பேலன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆட்கள் தான். இங்கே பண்ணுறது அங்கே போயிட்டு துபாயை நம்ம இதாக மாற்றியாச்சு. அது நம்ம இந்தியாவை மாற்றியாச்சு, பயப்படாதீங்க. அது அப்போவே மாற்றிட்டாங்க. ஹபீபி கம் டு துபாய்னு சொல்லும் போதே முடிச்சுட்டாங்க, புரியுதா? துபாயை पौधों को पानी दे रहे हो. सारी बियर निकल गई, मजा आ गया. तो भाई भूल गया कि एडिट भी करनी होती है वीडियो. शू करने में जो आनंद है कहीं और नहीं है. तो मेरे दोस्त हाथ कांध धोएगा भाई. ऑर्गेनिक जेल लगा रहा है. ठीक है, अब तू ये दे. देख, बस स्टॉप पे बस रुकती है, टट्टी नहीं. अरे हम फौरन हल्का फील करने तो जाते. अरे भाई ने बस शवारमा खाया होगा सुबह. ये सब ही है लैक ऑफ सिविक सेंस. इसको देखो, भाई के पास रिटर्न टिकट के पैसे नहीं है, बस कुछ भी करके डिपोर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ स्टूडेंट्स के वीजा टोक्यो को मिल जा रहा है. फिर इनको हाथ से दाल चावल खाना है पब्लिक में, मेट्रो के अंदर. ऐसी हरकतें कोई यहाँ भी नहीं करता. हमारा देश कितना रैपिडली ग्रो कर
कर रहा है। बड़े बड़े कंपनीज यही मैन्युफैक्चर करती है। इतना अच्छा सब छुप जाता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। देश में इतनी प्रोग्रेस है, स्पेशली थ्रू हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ मिला व्हेन वी वेंट टू ओडू कम्युनिटी डे, जहां पहुंचते ही हमें पता चल गया कि ये क्यों है इंडियाज बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट। वेन्यू पे 15,000 की कैपेसिटी, हम जो आपके बिजनेस एप्स लाइक सारे फिर हम विलंबर guys. डिस्क्रिप्शन विलंबर फॉरेन बाहर जाती निकलने लगती है। वेलकम टू सिविक सेंस दिखला जा। आज हमें ऐसे इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स मिलेंगे जो अपने देश में तो घंटे से नहीं नाचे, जो अपने शादी तक में लाश बने थे, पर इंडिया से बाहर जाते ही ले ठुमका, ले लचक, ले सपना चौधरी पे, ले 5 पैग डाउन पर राती वाला डांस, दुनिया भर से हमें அண்ட் அதே மாதிரி நான் இது பார்த்தேன், அது இப்போ என்ன பாரிஸ்லையா ஃப்ரான்ஸ்லையா வந்து அந்த முருகர் தேர் இழுக்க போது அந்த ரோட்டில் ஃபுல்லாக இது தேங்காய் உடைப்பாங்க. ஆக்சுவலி நான் அது ஒரு இது படிச்சு என்னன்னா, அது 10-15 வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம். அது கவர்மெண்ட் வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்தா பண்ணுறாங்களாம். அது அந்த தேங்காய் உடைச்சிட்டு அவங்களே அதை க்ளீன் பண்ணுறாங்களாம். ஸோ அது கூட ஓகே, பட் இது ரொம்ப தவறு. டிபோர்ட் கனடா इधर फुल हैशटैग फुल डिपोर्ट इंडियन ना, न्यू इंडिया डिपोर्ट इंडिया। कंटेस्टेंट्स जिनका विदेश से एग्जिट हो जाना चाहिए, पर एंट्रीज आई है फ्रॉम टोरंटो, वैंकूवर, टोक्यो, क्लब नो, कनाडा எல்லாம் ஒளிஞ்சி அவ்வளவுதான். கனடா थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्री और फैमिली ट्रिप वालों का थाईलैंड में गरबा, दुबई में गरबा, ऑस्ट्रिया में गरबा। We approached them to play a गरबा song on their speaker. पहले उन्होंने मना कर दिया, बट हम बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। Never give up mindset। बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। So काफी रिक्वेस्ट करने के बाद they finally agreed। काफी जबरदस्ती फोर्स करने के बाद उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप उनके सर पे बैठ गया था, और जहाँ डांस नहीं हो सकता वहाँ इनका जोर से गाना निकल जाता है। 3 मिनट के लिफ्ट जर्नी में भी हम शांत नहीं रह सकते। सफर को सफरिंग बना दे, ताकि उन्हें भी जिंदगी भर याद रहे कि वो इंडियन से मिले थे। तो अब आप ही बताइए कौन जीतेगा ये शो और किसका होगा पासपोर्ट जब्त? एंड द विनर इज कांग्रेचुलेशन। और बाय द वे ये आप ही के पासपोर्ट को फाड़ के बनाया गया है। कभी अब्रॉड मत जाना। गेट आउट। मेरा पासपोर्ट। गेट आउट, गेट आउट। इमेजिन अमेरिकन आगरा की सड़कों पे झुंड बना के ट्वर्क करने लगे, राष्ट्रपति भवन के सामने बेली डांस शुरू कर दिया, अरब टूरिस्ट गुस्सा नहीं आएगा? तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट बात दिस मंथ। ये यार इसी एक बात से एक बंदे को इतना गुस्सा आ गया। हम लोग बोलते हो ना बहुत, हम नहीं नहाते, बदबू आती है, शावर से डर लगता है। ये लो, सबके सामने फॉरेन के पब्लिक पूल में नहा लिया, साबुन के साथ गुफाओं में रगड़ रगड़ के कतई। बच्चे सदमे में ऐसा नहाया है कि अंग्रेज भी बोलते भाई ठीक है मत नहाओ यार, मत नहाओ, तुम लोग ठीक हो यार, मत नहाओ, ठीक है, सॉरी, ठीक है भाई, समझ गए वो। ब्रो थिंक्स दिस इज बोसारी गांव का तालाब। अबे अलादीन का जिन निकल जाएगा थोड़ा और घिसा तो। देखो मैं समझ सकता हूँ, टॉयलेट पेपर यूज करने के बाद मिनिमम इतना घिसना तो पड़ता ही है भाई। इतना स्मेल, अनियन स्मेल किया कि अब इंडियंस वहाँ जाके सबके सामने कपड़े भी धोने लगे कि देख साले अब जर्मनी के फाउंटेन में निरमा बह रहा है, पानी एक्चुअली அந்த இந்தியன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்தியன்ஸ் நான் அதை பார்த்தேன், क्योंकि किसी के लक्स का कलर छूट गया। लास वेगस में कपड़े धो रहे हैं, टाइम स्क्वायर की नाली पे, लंदन की नदी में, नाली पे, लंदन लक्स कोजी का कलर छूट गया। लास वेगस में कपड़े धो रहे हैं, टाइम स्क्वायर। ஆக்சுவலி இது வந்து எப்படி சொல்றது, ஹேண்ட் வாஷிங் க்ளோத்ஸ். ஆக்சுவலி இந்த மிஷின் வந்து இவர் கண்டுபிடிச்சான்னு நினைக்கிறேன். இந்த மிஷினை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது வேண்டி அது கை வச்சு ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் அதை க்ளோத்தை உள்ளே போட்டு வாஷ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறது தான் நியூயார்க் ஸ்டேட்டஸ் இந்த மாதிரி வந்து வாஷ் பண்ணுறது। कि नाली पे, लंदन की नदी में, देख लो अंग्रेजों, 2 बार और बोलोगे स्मेल स्मेल तो नायग्रा फॉल्स में कच्चे धोके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे सुखा देंगे। और किसी को फॉरेन का वीजा मिले या ना मिले, एक से एक ठरकियों को जरूर मिल जाता है। हर तरफ देखिए, हर तरफ बंदियां ही बंदियां, माल ही माल, हर तरफ आइटम ही आइटम है। Very nice। अरे जवानी, சரி अरे जवानी। ये भाई काला गोरा ये सब भेदभाव नहीं। அந்த மாதிரி யூடியூபர்ஸ் தான் தம்ப்நெயில்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் பொண்ணை கட்டி பிடிச்சி நிற்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி போயிட்டு கட்டி பிடிச்சி நிற்கிறது ஃபோட்டோ எடுத்து தம்ப்நெயில், அதே நம்ம ஆட்கள் வந்து வாய்ப்பு வந்துட்டு பார்ப்பானுங்க। அதனால தான் அந்த மாதிரி வீடியோஸ் பண்ணுறாங்க। लाल चड्डी, काली चड्डी, पीली चड्डी, हरी चड्डी। क्योंकि उसकी नजर अभी तक சரி அந்த மாதிரி பொண்ணுங்களை பார்த்ததும் பக்கத்துல போய் ஒரு செல்ஃபி எடுத்து தம்ப்நெயில் போட்டதும் போடும் மில்லியன் வியூஸ்। स्किन टोन पे गई भी
ಅದರಿಂದ ಹರಿವಿಟ್ಟ काली चड्डी पीली चड्डी हरी चड्डी इन्होंने गोरी लड़कियों को देखा होता है बस फालतू पिक्चरों में, तो इन्हें लगता है हर गोरी लड़की सेम ही करेगी और சை कर ये राय शर्म मुझे आ रही है। अबे तू विनोद पटेल है, ब्रैड पिट नहीं। करवाली बेइज्जती। भाई कोहिनूर तुम लोग ही रखो तुम लोग कोहिनूर यार। एडवांस पेमेंट समझ लो ये सब सहने के लिए। यार खटी खटी देखते रहे ये भाई साहब आजा तू इंडिया वापस आ जा। फिर फॉरेन की लड़की ट्रेन में साइड बैठ गई तो वीडियो बना ली। फिर तुम पूछते हो कि हमारे देश में लड़कियों का अलग कंपार्टमेंट क्यों होता है? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही महिलाओं को, बचा रहे उन्हें। स्कूल बेंच के बाद पहली बार कोई लड़की साइड में आके बैठी है तो रिकॉर्ड करना तो बनता है भाई, रेयर मोमेंट। और जो काम किसी के इंडियन माँ बाप ने पहले ही कर देना चाहिए था, वो कसर फॉरेन लड़कियां पूरी कर रही है। तेरी ट्रिप कैसी थी भाई? अरे फुल पावर, जोरदार, ಏನಾಯ್ತು अनबीटेबल। तुझे बहुत मिस किया यार हमने, तू डॉक्टर है ना। फॉरेन ट्रिप लोगों के दिमाग में छाप छोड़, मैं पिछवाड़े पे छाप लेके आया, एक एक्स्ट्रा छेद हो गया वहां, दिखाता हूँ कभी, अभी देखो। इन सब चीजों के बाद पता है वो क्या है, एक चीज जिसकी हमें बहुत जरूरत है, सिविक नॉनसेंस मुक्ति केंद्र। यहाँ जब तक पेशेंट्स के दिमाग से नॉनसेंस हटके उसमें सिविक सेंस नहीं आ जाता, उनके पासपोर्ट्स हमारे पास यही जब्त रहते हैं। यहाँ के हर कमरे में होती है इंटेंस मुक्ति। इसको 3 पैकेट गुटखा खिला के सामने दीवार पे सिडनी स्वीनी की फोटोज चिपका दी है। अब देखते हैं कैसे थूकता है। कर लाल, सिडनी जी की फोटो देखनी है ना, और तो उसे लाल मत करना। सो नो स्पिटिंग, ओके? पासपोर्ट चाहिए ना वापस? गुड बॉय। और ये है हमारा DCU, डांस कंट्रोल यूनिट। इसके VR हेडसेट पे हमने विदेश की सड़क लगा के इसके हाथ पैर बांध दिए। देखो बेचारे को कितनी जोर से गरबा आ रहा है। जब तक इसका नाच गाना बंद नहीं हो जाता ना, ये ऐसे ही रहेगा। ओ, इसको ना बाथरूम की एलर्जी है, कब से बस स्टॉप, बीच या स्विमिंग पूल मांग रहा है। जब तक इसका प्रेशर कमोड के अंदर नहीं निकलता, ये भी नहीं निकलेगा। नहाना भी अंदर ही है। ये है हमारा TCU, टर्की केयर यूनिट। यहाँ अभी एक टर्की व्लॉगर का इलाज चल रहा है, जिसका फॉरेनर को देखते ही जो एक्चुअल में है उसकी बहन। शिट शिट शिट, नहीं नहीं नहीं, फिर से मैं फिर से नहीं 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 यार, फिर से इनको जब तक माँ या बहन से ना समझाओ तो इन्हें औरतों की इज्जत समझ ही नहीं आती है। मैम पासपोर्ट का पूरा बॉक्स चोरी हो गया। क्या तूने वो स्कैमर्स और पॉकेट मारो वाला रूम लॉक नहीं किया था क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई आइडिया है कौन चुराया? उसने लास्ट में बस ये बोला कि आई एम रेडी टू पे फॉर इट। I don't mind paying for it. I'm ready to pay for this. I don't mind paying for it. Please let me take this now. और ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट वाले फॉरेन जाने वाले ही बेइज्जती करा रहे हैं, यहाँ के लोग भी। फॉरेन लड़की दिखी नहीं कि बिस्किट देखते गली के सारे कुत्ते आ गए। क्या फायदा ये फोटो का? दोस्त ने बोलना है AI है। 150 रुपए में அந்த மாதிரி இந்த ஃபாரினர்ஸ் பார்த்தோன்னு போய் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது. ஐ திங்க் மிஸ்டர் பிஸ் ஒரு வீடியோஸ் போட்டிருப்பான். அது இந்தியன்ஸ் வந்து வெள்ளைக்காரங்களை பார்த்தாலே இது கடவுள் மாதிரி நினச்சிட்டு வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு. चल रही है आप सबको ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, और तेरी सोच 2 कौड़ी की है, ये 300 रुपए की है। फिर भी तू अफोर्ड नहीं कर पाएगा, भाग यहाँ से। यहीं पे सिविक सेंस नहीं है तो बाहर जाके कहाँ से आएगा? बेसिक चीजें जैसे प्लेन में से कोई लाइफ वेस्ट चुरा रहा है, आम का फेस्ट है तो आम चुरा रहे हैं, योगा का फेस्ट है तो योगा मैट चुरा रहे हैं, अगली बार फैन फेस्ट में से यूट्यूबर चुरा लेंगे। गमला चोरी तो यार बहुत टाइम से छोड़ो। आई एम वाचिंग व्हाई द वर्ल्ड सडनली हेट्स इंडियंस। कुछ लोग इंटरनेट पे ये रेसिस्ट चीजें तो बस रेज बेट की तरह डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है करोड़ों इंडियंस के पास इंटरनेट है। ऐसी वीडियोस डालो और इंडियंस से एंगेजमेंट ही एंगेजमेंट, लड़ते रहो कमेंट्स में। That's it for today guys। आप फॉरेन जाओ तो नाक ना कटाओ। यहाँ भी